Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. So this is the class for 10th. Our subject is English and today we will be discussing your chapter 6, which is what is amiss with us. It means what is wrong with us. क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे साथ गलत है. This topic we have discussed in the previous classes also. I hope that all of you remember. One thing which I want to tell you here is that start reading your books, start doing your assignments, start reading the chapters, start doing your grammar. स्कूल कभी भी खुलें आपको उससे बिल्कुल रिलेशन नहीं है. वॉट यू हैव टू डू, अपनी स्टडीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है and you will have to be motivated all the time that next year in the newspaper you will have your picture. Keep this determination in your heart and I want all my children to get stupendo fantabulously marks in English. So I am giving my 100%. I expect you to give your 100% too. Firstly we will see that what we have discussed. You will have to take out your this book Golden Race. Come on page number 77. ओके बेटा, अगर इस टॉपिक की बात करते हैं, अमिस का मीनिंग मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट शिफ्ट द कैमरा. अमिस इसका मतलब है गलत या आप कह सकते हैं रॉन्ग. गॉट इट? इट मीन्स रॉन्ग. क्या हमारे साथ गलत है. नाउ वी विल सी, लुक एट द स्लाइड्स नाउ. यस, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस ये हमने डिस्कस किया था और इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट. इफ इंडियंस आर द इंटेलेक्चुअल्स, okay, then why you can see the talent is going out of our country. What are the reasons? This we discussed. And then we saw some different type of, you can say, mentality. लोगों की क्या mentality है, क्या लोग noise pollution करने से पहले एक बार दूसरे के बारे में सोचते हैं. These things we discussed. And about the civic sense, जिसे आप कहते हैं common sense, क्या वो लोगों में है या नहीं. This also we have discussed. You can have a look at the text which you can see on the slide. Yeah. Noise pollution, this we have discussed that whenever we are playing a music or something else, or if we are talking loud, do we think about the person or the people who are staying nearby us? क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं एक बार भी जो हमारे आसपास हैं? क्या ये सोचते हैं कि उन्हें कैसा फील होगा? दिस डू यू थिंक? नो, नन ऑफ अस थिंक अबाउट इट. सो अगर आप देखना चाहें, अगर आप सीखना चाहें इन चैप्टर से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये सिर्फ एक ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा, ये रहेगा आपको एक पार्ट सिखाने वाला, एक मॉरल देने वाला, एक यू कैन से एक आइडियल चीज़ आपके लिए रहेगी कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो. But if you don't want, what you will do, you will just read the chapter and will do the question answer and the work is done. If I give you some creative assignment to write this chapter in your own words, will you be able to do that in English? Yes, that's for sure because the subject is English. So घर पर हो, टाइम को यूटिलाइज करो बेटा, टाइम को यूटिलाइज करना सीखो. If you don't know how to speak in English, start taking classes from YouTube, buy books or whatever sources are there. Take help from them and start building your confidence. When you will go out in this world, English is mandatory everywhere. Even if you are going for a small job or a big job, for a small salary or a bigger salary, English is must. So focus on yourself. Today we will see, yes, yeah, this we have discussed. Then also if there is a family, a marriage function or any other ritual, हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं. ये नहीं सोचते कि लोगों को प्रॉब्लम होगी या नहीं. ओके, नाउ the vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the driver blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. क्या बोल रखा है? दैट द व्हीकल्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स जो हम देखते हैं, ट्रक देखते हैं, ट्रॉले देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनके ड्राइवर्स दे आर नॉट सो, वो कैसे पढ़ेंगे, तभी तो वो ये काम कर रहे हैं. ओके,
अगर वो पढ़े लिखे होते तो आपकी मेरी जगह पर होते, ठीक है। सो क्या करते हैं वो लोग, बेवजह हॉर्न मारते हैं। अब जब वो हॉर्न बजाते हैं तो प्रॉब्लम्स कम। वाई? बिकॉज दैट दिस मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल स्टेइंग अराउंड देम अनबेरेबल। बार बार हॉर्न बज रहा है, आपके कानों में दर्द हो जाता है। दिस इज़ अनबेरेबल एंड विदाउट एनी रीज़न दे आर मेकिंग द हॉर्न, they are pressing the horn without any reason. Got my point what I'm telling? Yes. So the drivers, if we give them a special training, a training related to when you will have to blow your horn and what type of horn should be there in your vehicle, so that people will not get affected by it. Okay, देख लिया हमने ये. The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior masks the sensibility of our people at large and affects our efficiency. ठीक है, क्या कहा गया है कि ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एक तो आपके सिविक सेंस की लैक की वजह से होता है कि आप में बिल्कुल कॉमन सेंस है ही नहीं, आपका केयरलेस सोशल बिहेवियर है, ना आप में कोई सेंसिबिलिटी है लोगों के प्रति, ना आप किसी के बारे में केयर करते हैं, तभी आप इतना शोर मचा रहे हैं. इवन अब तो आप लोग तो युवा बड़े हो गए हैं, अब आप लोगों के पास अपनी अपनी बाइक्स होंगी, लड़कियों के पास स्कूटी होंगी, जो भी होंगी. बट वेन एवर यू डू दिस रैश ड्राइविंग, जस्ट थिंक अबाउट द पीपल हु आर नियर बाय यू. आप एकदम ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए 30 स्पीड में निकल जाते कहीं से, क्या एक बार भी सोचते हैं कि दूसरे इंसान को क्या इफ़ेक्ट हो रहा होगा? शायद कोई लर्निंग वाला आपके साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, क्या इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो रहा होगा? क्या आपके लिए रैश ड्राइविंग करना सेफ़ है? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज़ इट सेफ टू डू द रैश ड्राइविंग फॉर यू? नो, नॉट एट ऑल. सो थिंक अबाउट इट. If you really want to grasp something from this chapter, you can ultimately you can change yourself इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाके. Okay, yes, and it affects people on a larger scale, not on a smaller scale. Okay, and उनकी एफिशिएंसी भी इफ़ेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है. ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो हम सब ने किया है. कहाँ पे? हमारे इंडिया की ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रैवल किया है. अब देखते हैं क्या क्या समस्याएं होती हैं. वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ ट्रू. हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, कभी ना कभी सभी ने किया होगा. ट्रेन, बस, एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस. और कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं, कड़वे एक्सपीरियंसेस और बहुत दुखी करने वाले एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो लोग ऐसे समझते जैसे उन्होंने ख़रीद रखा है, वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. सो ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट गिव्स यू अ बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस. Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train, bus is rarely followed. ठीक है, क्यू मतलब होता है बेटे एक लाइन. ठीक है, हम जो स्कूल में कभी भी हमारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है तो क्या फॉलो करते हैं हम? लाइन वाइज, क्यू वाइज सबको बुलाते हैं, एक लाइन होती है उसको सब फॉलो करते हैं. बट अगर आप बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसमें चाहे आप बात करें टिकट बाय करते वक्त कि आप टिकट खरीदने जा रहे हैं तब की बात हो, या आप बोर्ड कर रहे हैं, आप अपनी बस में बैठने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, तो क्या ये क्यू सिस्टम फॉलो होता है? क्या सब लाइन वाइज मूव करते हैं? नाउ टू दिस टाइम, दिस इज़ द करोना टाइम, दिस इज़ द करोना एरा, वेयर इज सोशल डिस्टेंसिंग? आई कैन नॉट सी इट एनीवेयर. If I am going out for some urgent work, people are roaming here and there. They are enjoying themselves, they are eating outside without caring about anything. वो खुद की तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ में कम्युनिटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. Everyone in his self interest flouts the genuine rights of others. बिल्कुल सब अपना ही राइट समझते हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, ओके, मेरी भी, तेरी भी, सबकी प्रॉपर्टी. Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. क्या बताई जा रही है बात कि बिल्कुल जो हम, जैसे हमने टिकट खरीदा, इफ़ वी हैव बॉट द टिकट
and the other seat just nearby us is vacant. वॉट वी डू, हम जो दूसरा इंसान जिसको नीड है, जिसको बैठना है, उसको बहुत रिलक्टेंटली, कह सकते हैं रूडली, बहुत गुस्सा होते हुए हम उसे उस सीट पर बैठने देते हैं. क्यों ऐसा होता है बेटा? हम चाहते नहीं हैं, ये हम अनविलिंगली करते हैं. वी डोंट विल टू गिव हिम द सीट. हमने टिकट खरीदी है, मतलब भाई सारी सीट्स हमारी है. ओके और क्या करते हैं, उसको नेबरिंग सीट पर, वेकेंट सीट पर भी बैठने नहीं देना चाहते. अगर वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तो चलो ठीक है. When they do so, they grab about half of that vacant seat also. और जब ऐसा करते हैं तो टिकट तो है ही भाई, हम तो यहाँ के सिकंदर हो गए. और क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम ही लोग हैं, ये कोई और नहीं है, कोई दूसरे प्लानट से नहीं आए, ये हम लोगों की ही बात है. और क्या करते हैं, उस वेकेंट सीट की हाफ सीट भी खुद में ले लेते हैं. मतलब इतना फैल के बैठ जाते हैं कि दूसरे इंसान को बैठने की जगह ही ना मिले. पहले ही यू डोंट वांट हिम टू और हाउ टू सिट. नाउ ऑल्सो दिस वेकेंट सीट यू डोंट वांट. अब दे भी दी तो क्या करना है, बस उठाना तो है ही. तो आधी सीट फिर से फैल के बैठ जाओ, आराम से चौड़े होके बैठ जाओ ताकि वो बैठ ही ना पाए. दिस इज़ ट्रू, ये हम सब करते हैं, सब ने ये चीज़ होते हुए देखी हुई. सो दिस इज़ नथिंग, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे. दिस इज़ एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अस. द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियली स्टीयर्स दैम. बिल्कुल, किसी नीडी की हेल्प करना, किसी नीड में जो है इंसान उसकी हेल्प करना, ये तो हमारे नेचर में है ही नहीं. इसे ही कहते हैं सिविक सेंस, जिसे हम सब भूल गए हैं. ठीक है, सॉरी. Some people are fond of chewing beetles with tobacco. बिल्कुल, अब आपको टोबैको पता है क्या होता है? बीटल्स मतलब सुपारी. ये सब खाने की लोगों को आदत होती है. मुझे लिटरली इन सब चीज़ों से चिढ़ है, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ टीटोटलर. ही डोंट ईट, ही डोंट ड्रिंक एनीथिंग. सो और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है. एंड if I see someone eating that, I just feel to go and snatch that thing from their hand. ना वो उनके लिए, खुद के लिए अच्छा है, ना वो हमारे लिए अच्छा है. Okay, now let's come to the point. They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property. ठीक है, वो क्या करते हैं, कभी इधर थूकते हैं, कभी उधर थूकते हैं. फ्रीक्वेंटली, बार बार, कभी इधर थूक रहे हैं, कभी उधर थूक रहे हैं, कभी उधर थूक रहे हैं. एंड इफ़ यू गो इन फॉरेन कंट्रीज़, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए, आप जाइए अरब कंट्रीज़ में, आप जाइए यूएस में, क्या वहाँ ये सब अलाउड है? अगर हमारी कंट्री हमें फंडामेंटल राइट देती है तो क्यों ऐसा कानून नहीं बनाती कि आप पब्लिक प्लेस पर स्पिट नहीं कर सकते? ये तो हम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं कि भाई ये भी एक फंडामेंटल राइट है, दैट आई कैन स्पिट एंड आई कैन पी एनीवेयर आई वांट टू. ट्रू एंड रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू. They forget that they have paid for journey, not for spoiling the train or bus. क्या भूल जाते हैं कि हमने जर्नी के लिए पे किया, ये जो हमें रास्ता काटना है उसके लिए हमने पे किया. इसके लिए पे नहीं किया कि हम कहीं भी थूक सकें या हम ट्रेन या बस को हम गंदा कर सकें. इस चीज़ के लिए तो हमने पे नहीं किया. ये चीज़ वो भूल जाते हैं. They throw all rubbish and leftover wherever they so desire. बिल्कुल भाई, बैठ जाएंगे बस में, मूंगफली खाना शुरू, फिर कचरा इधर, कचरा उधर. ट्रेन में बैठ गए, फिर कुछ खाना शुरू. पार्क में गए, फिर कुछ खाना शुरू, और कचरा वहीं पर. आप कुछ खा भी रहे हो तो भी ये आप ही की ड्यूटी होनी चाहिए कि आप उसे उठाकर प्रॉपर डस्टबिन में डालो. दिस इज़ ट्रू. और ये सब बातें हम लोग जानते हैं. आज क्या करेंगे, आज बात करेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे. ओके, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. Our public transport, our roads and streets or public place, our building are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. ये जो चीज़ें हैं, ये जो गंदगी है, ये जो चीज़ें लोग फैला रहे हैं, इससे हमारी पब्लिक प्लेसेस, हमारी बिल्डिंग्स, जिस भी जगह हम रहते हैं, वो चीज़ें भरी पड़ी है इन चीज़ों से. क्या है वो चीज़ें? इन चीज़ों से भरी पड़ी है. और ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, हार्मफुल है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है. अभी भी जब आप कोरोना
के टाइम पर, एरा पर, जब आप अपने घर में हो, आपसे यही कहा जा रहा है बार बार, सफाई सफाई सफाई. Cleanliness should be there. Everything should be sanitized and clean. You should have your hands clean. बिल्कुल आपको सैनिटाइजेशन करवाना चाहिए और आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए. क्यों करवाया जा रहा है? ताकि बिल्कुल पब्लिक कांटेक्ट ही ना हो हमारा. अब देखिए, अगर ऐसी चीज़ें आपके आसपास हैं तो आप कैसे सेफ रह सकते हैं? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू. इन द लास्ट you can say, in the last minutes I'll be giving you the assignments, some questions like this only. Okay, yes. और ये हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, ये हमको सबको पता है. In spite of statutory warnings, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarette और बीडीज. बिल्कुल लोग क्या करते हैं, खुद नहीं परचेज करने जाते तो अपने बच्चों को भेज देते हैं. उस पैकेट पर लिखा है दैट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. कितनी बड़ी एक लाइन है, बट बिल्कुल इग्नोर कर देते थे वो उसको. उनको ऐसा लगता है एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है. ट्रू, आप सबने भी देखा है, मैम ने भी देखा है. तो क्या ये सब चीज़ें करेक्ट हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? आप जब पैकेट देखेंगे उस पर लिखा हुआ है, पिक्चर भी बनी हुई है कि कैंसर हो सकता है आपको. तो स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. इट मीन्स दैट दिस कोट इज टेलिंग दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. देन वाई यू आर ईटिंग दिस? बट नो, सिगरेट बीडीज आराम से खरीदते लोग विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट ट्वाइस. बस खरीद लेते हैं बिकॉज दे इंजॉय इट. द पिटी इज़ द स्मोकर इन देयर ओन एन्जॉयमेंट. डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम. बिल्कुल वो लोग खुद इंजॉय करने के चक्कर में, या आप कह सकते हैं फॉर देयर ओन इंजॉयमेंट, द फॉरगेट अबाउट द पर्सन हु आर लिविंग नियर बाय देम. जो लोग उनके आसपास रहते हैं उनके बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है ये है ही नहीं, दे आर इमेजिनरी, नो वन इज़ देयर. समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग. पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म. बिल्कुल देखिए, ये जो चीज़ें करते हैं लोग, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, टोबैको खाते हैं, फिर स्पिट करते हैं इधर उधर, ये चीज़ें लोगों को चाहे उन्हें हर्ट करे ना करें, बिकॉज उनका ये डेली रूटीन है. बट जो लोग उनके आसपास रहते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये चीज़ें. सो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम कुछ ऐसा करें. अगर आप करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया है आपके पास, कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस हो कि ये चीज़ें ना करें. अगर आप खा भी रहे हैं तो पब्लिक प्लेस को प्लीज़ छोड़ दीजिए. अपने घर में खाइए, अपने घर में स्पिट कीजिए, अपने घर में स्मोक कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा. आई होप, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आपको कोई मना नहीं कर सकता, तो घर में भी आपको कोई मना नहीं करेगा. ओके, एंड अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है, so start doing all these things. So today we will be discussing till here only. I will give you some questions as your assignment. Just give me a second. Yeah. Note down the questions. Question first. What is your verdict? VERDICT. पूरा इस पे माएगा नहीं तो मैं आधे पार्ट में रिगार्डिंग पब्लिक क्लीनलीनेस. रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन. व्हाट इज योर वर्डिक्ट रिगार्डिंग पब्लिक क्लीनलीनेस? मतलब पब्लिक क्लीनलीनेस की बात करें तो आपका क्या वर्डिक्ट है, आप क्या सोचते हैं पब्लिक क्लीनलीनेस के बारे में? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ यू will contribute. ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए. contribute towards exemption of public smoking. Got it? So these are the two questions. Note it down fast. Yes, you will have to write these answer in your own words.
ये मत सोचिए कि असाइनमेंट नहीं करेंगे, असाइनमेंट के बेसिस पर ही मैं आपको इंटरनल एग्ज़ाम्स की मार्क्स दूंगी और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी अब हम टीचर्स के ऊपर ही. सो बेटर बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So today we will be discussing till here only. I will see you in the next class. Till then, take care of yourself and your parents and keep on reading these books. Bye bye.